Hello student. Uh, Today I will take a class on the topic of pulse oximetry. So you all know about the pulse oximetry. Pulse oximetry, it is a device, one type of device. So with the help of this pulse oximeter, we will see the oxygen saturation of the patient. So nowadays, because of COVID, many persons which will be knowing about the pulse oximeter. So now we will discuss what is pulse oximeter. So this pulse oximeter used to measure oxygen saturation in the body. That is how much of the hemoglobin in the blood is carrying the oxygen. Means pulse oximeter जो है वो क्या होता है? It is used to measure means it will be used for checking the saturation of the oxygen in the hemoglobin. Hemoglobin में जितना कितना ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कितना है उसको फाइंड आउट करने के लिए we have to use this instrument or a device that is called as pulse oximeter. Then what is the definition of this pulse oximeter? So pulse oximeter, it is defined as a non-invasive device. Non-invasive device means invasive or non-invasive procedure. There will be two types of procedure, non-invasive or invasive. So this non-invasive or invasive means non-invasive, it means painless procedures. Okay? So in this procedure, or when we will use this pulse oximeter, so it is a non-invasive device. Means in when we will use this device, so in that time the patient which will not feel any pain. Patient को उसमें कोई भी pain नहीं होता है. So it is used to measure blood oxygen level. So means this instrument which will be showing to uh, which will be seeing the blood oxygen level and can also display heart rate. ठीक है, ये blood oxygen level के साथ साथ ये क्या show करता है? It will be also showing the heart rate of the patient. Then next definition, a pulse oximeter is a medical device that indirectly monitor the oxygen saturation of a patient's blood. ठीक है, so this pulse oximeter, it is also called as a medical device. So that indirectly means what is the function of this pulse oximeter? It will be indirectly monitor the oxygen saturation of the patient's blood. Patient के blood में ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो कितना है उसको फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज दिस पल्स ऑक्सीमीटर. सो एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई वी हैव टू check the oxygen saturation in the patient's blood? So why? Because when the person which will be not getting the sufficient amount of oxygen through the blood, so in that condition the person which will be developing or the person which will be having many problems such as dyspnea. क्या पेशेंट को क्या होता है? डिस्निया होने का प्रॉब्लम रहता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने का चांस रहता है. तो क्यों होगा? जब उसके बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है. तो ऑक्सीजन क्यों नहीं जा पाएगा? कि जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिसके कारण से बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा एंड द लंग्स विच विल बी आल्सो नॉट गेटिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन मे बी डेवलपिंग द चांस ऑफ डिस्निया. Nowadays the many person which will be suffer from this COVID. So because of this COVID, nowadays many persons or many people and they will be knowing about this pulse oximeter. उनको बहुत सारे आप लोगों को भी अभी पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में पता चल गया होगा. पहले क्या था, इन मेडिकल और इन हॉस्पिटल्स ओनली वी विल सीइंग दिस पल्स ऑक्सीमीटर, बट नाउअडेज हर किसी के घर में आपको पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोविड के कारण से लोगों को क्या था, द पर्सन विच विल बी हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी और डिस्निया. सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्निया हाउ वी विल चेक द ऑक्सीजन सेचुरेशन. इसमें क्या हो रहा था, द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन विच विल बी डिक्रीज इन द पर्सनस बॉडी. सो उस लेवल को चेक करने के लिए अपन क्या करते थे, पल्स ऑक्सीमीटर. और चूंकि ये एक नॉन इन्वेसिव डिवाइस है, एक मेडिकल डिवाइस है और इसको easily ये हैंडल किया जा सकता है. दैट्स व्हाई we will use this instrument or device. Then what are the purpose of this pulse oximeter? So pulse oximeter measure the arterial oxygen saturation of hemoglobin. आप लोगों को पता है हमारे बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन रहता है. So with the help of blood testing we will check the level of the hemoglobin. hemoglobin का हम लोग लेवल चेक करते हैं. लेकिन with this pulse oximeter हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का
कितना सैचुरेशन है, ऑक्सीजन कितना है उसमें, उसको फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज दिस pulse oximeter device to relieve cyanosis by detecting hypoxia and severe respiratory फेलियर। ठीक है, हम लोग और क्या इसका पर्पस क्या है, टू रिलीव साइनोसिस। अगर साइनोसिस मीन्स क्या होता है, व्हेन द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन विच विल बी डिक्रीज इन द बॉडी एंड बिकॉज ऑफ दिस द पेशेंट्स skin color which will be changed. So what is the color of the patient's skin? It will be bluish discoloration, that is called as cyanosis. So by detecting hypoxia, hypoxia जब patient में क्या होगा, hypoxia होगा, मतलब the oxygen level which will be decreased, it is called as hypoxia. तो hypoxia होगा तो cyanosis develop होगा, तो cyanosis develop होगा, और ये हमको कैसे पता चलेगा, we will find out with the help of this pulse oximetry. तब हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर को होने से अपन रोक सकते हैं। देन पल्स ऑक्सीमीटर मेजर, पल्स ऑक्सीमीटर क्या क्या मेजर करता है, द ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आर्टीरियल ब्लड, आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है उसको फाइंड आउट करने के लिए। देन द सेकेंड वन इज द पल्स रेट इन बीट्स, ठीक है, बीट्स पर मिनट, पल्स रेट को भी ये क्या करता है, फाइंड आउट करता है। Then what are the indications? Indications means this pulse oximeter, it will be used in which type of patient, ठीक है, किन में हम use कर सकते हैं। So patients who may experience sudden change in blood oxygen level, ठीक है, किसमें हम लोग चेक करेंगे, द पर्सन हु मे एक्सपीरियंस, व्हेन द पर्सन विच विल बी एक्सपीरियंसिंग दैट द sudden change in blood oxygen level, means the person's condition which will be unstable, the person which will be complaining that the person is having the problem of this dyspnea or breathing difficulty or respiratory failure, or the patient condition which will be unstable. So in that time we will use this pulse oximeter to check the oxygen saturation of the patient. Then the second one is patients who will need evaluation for home oxygen therapy, ठीक है, the person who will need evaluation for home oxygen therapy, मतलब the person who is bedridden, or the person who is having any type of breathing difficulty. So in that time, if the person which will be using oxygen therapy, again I will give the example of COVID, बहुत सारे पेशेंट को क्या था, होम क्वारंटाइन रखा गया था, ठीक है, मतलब वो हॉस्पिटल में नहीं थे, वो घर में ही उनका केयर हो रहा था, तो उनको क्या था, कई कई को ऑक्सीजन थेरापी भी पेशेंट को दिया जा रहा था। तो इन दैट कंडीशन वी विल चेक द पेशेंट्स ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो प्रॉपर, जो हम ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, सो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी द पर्सन्स which will be getting properly oxygen or not. So how we will find out that the patient which will be getting proper amount of oxygen in their body, it will be with the help of this pulse oximeter only. Then next is the patient who needs supplemental oxygen at rest and with exercise, ठीक है, patient the patient which will be able to take the breathe, but the patient needs supplemental oxygen, patient को क्या चाहिए, supplemental oxygen चाहिए है at rest, during the time of rest and with exercise also. So when the person which will be taking oxygen therapy, जब उसको supplemental oxygen दिया जा रहा है, oxygen therapy बाहर से उसको oxygen दे रहे हैं, so in that time also we have to check that the person's oxygen level according to patient need, it will be sufficient or not. So how we will find out that the patient's oxygen saturation which will be proper or not, it will be with the help of pulse oximeter only. This is pulse oximetry is indicated in any situation, ठीक है, when hypoxia may occur, example very severe pneumonia, when the person is having the problem of very severe pneumonia, in that time also the oxygen saturation which will be decreased. If the person is having the problem of severe bronchiolitis अगर हुआ है, तो means inflammation in the bronchi, अगर bronchi में inflammation हो गया है, so in that time also the person with the help of this pulse oximeter we will see the oxygen saturation of the patient. Then status asthmaticus, means if the person is having the problem of asthma or acute stridor hai ya uncontrolled, if the person is having the problem of uncontrolled heart failure, profound shock,
if the person is having the problem of shock. So why the person which will be having the problem of shock, it will be occur because when the person which will be not getting the sufficient amount of oxygen or blood. So because of this also the person may be developing many type of shock. Then encephalopathy with respiratory depression. Sometimes the person is having the problem of encephalopathy uh, with respiratory depression, means when the respiratory system which will be depressed. So in that time, uh, means when in that time when the brain which will be not getting the sufficient amount of oxygen or blood. Then next is monitoring in case of means when we will monitoring the patient. Sometimes the patient is having the problem of sleep apnea syndrome, means during the time of sleep the person which will be not able to take the proper breath. Then apnea of prematurity, means apnea means the means the person which will be having the problem of एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, जब वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं ले पाता है. एंड ऑक्सीजन डिपेंडेंट, जब पेशेंट पूरी तरह से, द पेशेंट विच विल बी नॉट एबल टू टेक देयर ओन ब्रीथ, द पेशेंट विच विल बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन द ऑक्सीजन. सो ये किस में होता है, इट विल बी मेनली अकर इन प्री मेच्योर बेबीज, जो छोटे बच्चे होते हैं जो प्री मेच्योर होते हैं 9 मंथ से पहले जो हो जाते हैं 6 मंथ में 7 मंथ में. तो जनरली वो क्या होते हैं, दे विल बी ऑक्सीजन डिपेंडेंट. एंड the other another example, like if the person is having any respiratory failure, कोई respiratory failure वाला patient है adult में जो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा है या lungs में कोई infection हो गया है. So in because of these conditions, if the person which will be not able to take their own breath and the person which will be totally depend upon the oxygen, then continuously it can replace blood gas analysis in many situations, except where analysis of PCO2, means partial carbon dioxide, and acid base status is essential. It does not provide an absolute indicator of हाइपरऑक्सिया. मतलब ये जो होता है कंटिन्यूसली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ग्रेट एडवांटेज इज दैट मेजरमेंट कैन बी कंटिन्यूस, हम लोग इसको कंटिन्यू मेजर कर सकते हैं. बट इट कैन रिप्लेस ब्लड गैस एनालिसिस. हम लोग इसको एक ABG होता है, ABG मतलब क्या होता है, ब्लड गैस एनालिसिस होता है, ठीक है. So in this, in many situation, sorry, it can replace blood gas analysis in many situation, except where analysis of PCO2 मतलब पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड बेस स्टेटस जो है उसको अपन को क्या करना है, वी हैव टू चेक essentially. Then next is, what is the function of this pulse oximeter? It is a safe and simple method of assessing oxygenation. मैंने पहले भी बताया कि आप लोग भी कई लोग अभी इससे बहुत मीन्स फेमिलियर हो गए होंगे, दैट बिकॉज इट इज़ अ सेफ, ये एक सेफ है, सिंपल मेथड है फॉर असेसिंग द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द पेशेंट. देन इट इज़ नॉन इन्वेसिव, इसमें कुछ भी ऐसे पेन नहीं होता है, कुछ इंसर्ट नहीं करना पड़ता. देन एक्सेप्टेबल नॉर्मल रेंज आर फ्रॉम 95 to 100%. इसमें जो नॉर्मल रेंज होता है वो कितना होता है, इट शुड बी 95 to 100%. Then convenient and measurement can be continuous. We will continually check, and it is a convenient method so that we will check the patient oxygen saturation. Then oximeter consists of, अब oximeter में क्या क्या चीज़ें होती है. And there will be two type of means there will be many type of pulse oximeter, but this in upper side you will see, in upper side you will see that the person which will be seeing the sometime in hospitals we will use this type of, means monitor with attach the monitor के साथ में आपको क्या रहता है, पल्स ऑक्सीमीटर रहता है. बट नाउ डेज क्या हो गया है, जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो अलग से ही होता है, ठीक है. सो पेरिफेरल इसमें क्या होते हैं, प्रॉब होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट डिस्प्ले अ वेव फॉर्म, ठीक है. इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है वो
क्या करता है, वेव फॉर्म करता है, द ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड द पल्स रेट. सो with the help of this wave only we will see the person's oxygen saturation and pulse rate. Then red and infrared light emitters detector. इसमें ये आपको ये दिखाई दे रहा है, आगे हम लोग जब प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे. So this is the red and infrared light emitters detector. Then most ऑक्सीमीटर्स ऑल्सो हैव एन ऑडिबल पल्स टोन. ठीक है, सारे ऑक्सीमीटर ऑलमोस्ट सब में ही ऑडिबल पल्स टोन जो है वो प्रेजेंट रहता है. Then next is the principles of pulse oximetry technology. Pulse oximetry technology का क्या principles है? हर चीज के पीछे क्या रहता है, एक सिद्धांत रहता है. So the pulse oximetry technology's principle, it is based on the red and infrared light absorption characteristic. इसमें क्या होता है, there will be two lights. ठीक है, एक तो होता है red and infrared light absorption characteristic of oxygenated and deoxygenated hemoglobin. ठीक है, इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब करने का क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रेड लाइट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस infrared light? So first we will see what is red light. So red light is in the 600 to 750 nm wavelength light band. ठीक है, इसका जो वेव लेंथ होता है, मतलब आप लोगों ने अभी देखा इसके प्रीवियस स्लाइड में, इसमें जो वेव लेंथ होता है वो कैसा होता है, 600 टू 750 वेव लेंथ होता है लाइट बैंड. And infrared light is in the 850 to 1000 nm wavelength light. दोनों का एक लेंथ बता रहा है कि वो वेव लेंथ जो है वो कहाँ तक जाता है. सो पल्स ऑक्सीमीटर वर्क्स बाय प्लेसिंग अ पल्सेटिंग आर्टीरियल वेस्कुलर बेड बिटवीन अ ड्यूअल लाइट. ठीक है, आप लोगों ने देखा है कि पल्स ऑक्सीमीटर कैसा होता है. सो पल्स ऑक्सीमीटर को क्या किया जाता है, इट विल बी प्लेसिंग, मतलब जहाँ पे पल्सेशन होता है उसी जगह पे हम लोग उसको क्या करते हैं, वहाँ पे बेड मतलब सामने साइड जो होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको लगाते हैं. तो ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, बाय प्लेसिंग द पल्सेटिंग आर्टीरियल वेस्कुलर, जहाँ पे आर्टीरियल वेस्कुलर बेड होते हैं बिटवीन अ ड्यूअल लाइट. दोनों ही लाइट होते हैं, एक तो होता है रेड और दूसरा होता है इंफ्रारेड. सो दिस ड्यूअल लाइट सोर्स एंड अ फोटो डिटेक्टर. तो ये जब लाइट है ऑन होता है ना, बीप की आवाज आती है, जब वो ऑन होता है तब हमको उसको फिंगर्स के बीच में लगाना पड़ता है. सो द फोटो डिटेक्टर रिकॉर्ड द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच कलर एब्सॉर्ब बाय आर्टीरियल ब्लड एंड ट्रांसमिट द डाटा टू अ मॉनिटर. उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये व्हेन वी विल फिक्स दिस पल्स ऑक्सीमीटर, सो आफ्टर दैट द फोटो डिटेक्टर विच विल बी रिकॉर्ड, जो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच कलर, कौन कौन सा कलर जो है वो क्या हुआ है, एब्सॉर्ब बाय द आर्टीरियल ब्लड. आर्टीरियल ब्लड में कौन सा कलर जो है वो एब्सॉर्ब हुआ है एंड ट्रांसमिट द डेटा टू अ मॉनिटर. और उसके बाद मॉनिटर में वो क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है, विच डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन विथ ईच हार्ट बीट, जो क्या करता है, हमारा एक एक हार्ट बीट को क्या करता है, डिस्प्ले करता है. सो इफ ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन, अगर ब्लड जो है वो क्या है, ऑक्सीजन रिच है, so then it easily absorb the infrared light and allow it to pass. ठीक है, so in this you will see that if blood which will be rich in oxygen, अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ज़्यादा है, so in that time क्या होगा, it will be easily absorbed the infrared light. हमारा जो infrared light है, सॉरी जो पल्स ऑक्सीमीटर में जो इंफ्रारेड लाइट है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी इजीली एब्जॉर्ब्ड एंड अलाउ इट टू पास. और वो क्या करेगा, पास होने में उसको मतलब उसको पास करने देता है. देन अ हेल्दी पर्सन हैज सैचुरेशन लेवल विच विल बी रेंजिंग फ्रॉम 95 टू 99 और 100%. अगर वो हेल्दी पर्सन है, ये इंफ्रारेड जो है वो क्या हो गया है, एब्सॉर्ब हो गया है, क्योंकि उसकी उस पर्सन के ऑक्सीजन में सॉरी ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कैसा है, हाई है. सो बिकॉज ऑफ दिस द इंफ्रारेड लाइट विच विल बी एब्सॉर्ब प्रॉपरली by the patient's blood and the saturation level which will be 95 to 99%. So this is the principles of this
pulse oximeter, then generally measures on means where we will be measured, कहाँ पे कौन से एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं पल्स ऑक्सीमीटर को लगा सकते हैं. तो वेरियस साइट्स लाइक द फिंगर्स में लाइक मिडिल फिंगर और दैट रिंग फिंगर, ये सब में हम लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं. एंड इट विल बी ऑल्सो यूज इन द टो. पिन्ना मीन्स इट इज प्रेजेंट इन द ईयर और लोब ऑफ द ईयर लोब जो है वहाँ पे भी अपन यूज कर सकते हैं. एंड इन इन्फेंट्स में द ब्रिज ऑफ द नोज में जो ब्रिज है वहाँ पे, फुट और पाम ऑफ द हैंड, ठीक है, फुट में और जो पाम ऑफ द हैंड है वहाँ पे द बिग टो और द थंब, ठीक है, थंब में और बिग टो में भी अपन यूज कर सकते हैं. तो दीज आर द साइड्स टू यूज द pulse oximeter. So these are the pictures in which we will use this pulse oximeter. This is the picture of the pulse oximeter which will be connected with the monitor. And this type of pulse oximeter which will be used in the hospitals like in ICUs or semi ICUs or pediatric ICUs. But that portable that pulse oximeter which will be used in home, or the person which will be having the problem of this respiratory failure or this hypoxia or any type of respiratory disease. So these type of patient which will be keeping this pulse oximeter with them only. Then what are the advantages of this pulse oximeter? A pulse oximeter is useful in any setting where a patient oxygenation is unstable. So it will be used in any setting. कहीं पे भी अपन use कर सकते हैं when the patient's oxygen saturation which will be unstable. So including intensive care unit like semi ICU or cardiothoracic ICU or neonatal ICU and pediatric ICUs, then operation theater and recovery rooms, emergency or casualty, then hospital ward setting, and determining the effectiveness of need for supplemental oxygen. So it in this slide you will see that it will be used in means in this slide you will see that it will be showing the सेटिंग्स इन द हॉस्पिटल. कौन हॉस्पिटल सेटिंग में हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो बता रहा है. बट नाउ एंड डेज मेनी पर्सन्स विच विल बी ऑल्सो यूज इन दिस पल्स ऑक्सीमीटर in their home also. Then what are the limitations? Oximetry is not a complete measure of respiratory sufficiency. Oximetry से ही हम लोग मतलब respiratory sufficiency को पूरी तरह से find out नहीं कर सकते. A patient which will be suffering from hypoventilation or poor gas exchange in the lungs, given 100% oxygen, can have excellent blood oxygen level while still suffering from respiratory acidosis due to excessive carbon dioxide. So it is in this we will see the limitation. Oxygen can have oxygen excellent blood oxygen but level while still suffering. कभी कभी क्या होता है ऑक्सीजन का जो लेवल है वो अच्छा होता है ब्लड में, एक्सीलेंट होता है, बट देन ऑल्सो the person which will be suffer from respiratory acidosis which will be occur because of excessive carbon dioxide which will be present in the patient's blood. So these are the limitations. So because of this only the means in this slide it will be saying that oximetry is not a complete measure of respiratory sufficiency. Then it is also not a complete measure of circulatory sufficiency. ठीक है, मीन्स हार्ट के लिए सर्कुलेटरी सफिशियंसी के लिए भी ये complete measurement नहीं है. If there is insufficient blood flow of or insufficient hemoglobin in the blood or anemia, tissue can suffer hypoxia despite high oxygen saturation in the blood does arrive. ठीक है, मतलब कि अगर इफ द पर्सन इज हैविंग एनी इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो है या फिर ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में है इन द ब्लड, मीन्स इफ द पर्सन विच विल बी सफर फ्रॉम दिस एनीमिया, सो टिश्यू कैन सफर हाइपोक्सिया.
टिश्यू मतलब टिश्यूज में क्या हो सकता है, ऑक्सीजन का सफिशिएंसी जो है वो कम हो सकती है डिस्पाइट हाई, लेकिन उसके बावजूद द ऑक्सीजन सेचुरेशन विच विल बी हाई इन द ब्लड दैट डज अराइव। ठीक है, मतलब ये क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो जितना भी हीमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन का सेचुरेशन तो ठीक है, लेकिन द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन विच विल बी डिक्रीज। ठीक है, so these are the limitations which will be present in the pulse oximeter device. The higher level of methemoglobin will tend to cause a pulse oximeter to read closer to 85% regardless of the true level of oxygen saturation. ठीक है, so in this a higher level, अगर हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो हाई है, so ये क्या शो करता है, cause pulse oximeter to read closer, मतलब 85% से ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो शो करता है। इन दिस पिक्चर यू विल सी दैट इट विल बी शोइंग द ऑक्सीजन सैचुरेशन और हार्ट रेट, इट विल नॉट शो द PCO2 एंड एसिड बेस स्टेटस। इसमें हमको ये नहीं पता चलता कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सैचुरेशन है वो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड उसका लेवल जो है वो कितना है या एसिड बेस स्टेटस कितना है। इसमें सिर्फ हमको ये बताता है व्हाट इज द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड what is the number of heartbeats. It will not provide an absolute indicator of hyperoxia। मतलब अगर पेशेंट को मतलब प्रॉपरली ये जो है एब्सोल्युटली करेक्टली हमको ये इंडिकेट नहीं करता कि द पर्सन विच विल बी हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ hyperoxia. Then inaccurate result in following condition, पुअर परफ्यूशन मतलब प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिटिव डिलीवरी ऑफ आर्टीरियल ब्लड टू अ कैपिलरी बेड इन द बायोलॉजिकल टिश्यूज, या डिस हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब इफ द लेवल ऑफ द hemoglobin or blood, if the carbon dioxide level which will be increased, it is a stable complex of carbon monoxide and hemoglobin that form in red blood cell when carbon monoxide is inhaled or produced in normal metabolism। ठीक है, मतलब for इन conditions में acute results आने के chances कम रहते हैं। कब कब, जब poor perfusion होता है, या फिर अगर डिस हीमोग्लोबिन है या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हुआ है। So in that conditions, we will not check the accurate, or we will not seeing the accurate measurement of the oxygen saturation. Then next is the hyperoxygenation या arrhythmias. Arrhythmias means it is an arrhythmia is a disorder of the heart rate. heart rate का ये disorder है, और heart rhythm such as beating too fast, जब बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज टेकिकार्डिया, या फिर बहुत ज़्यादा स्लो होती है, दैट इज़ नोन एज ब्रेडिकार्डिया, और टू और इट विल बी इरेगुलर या फिर इरेगुलर होती है। देन एक्सेसिव एम्बियंट लाइट, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लाइट अगर जा रहा है, सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो वी विल नॉट फाइंड आउट द करेक्ट result or correct amount of the oxygen saturation. A pulse oximeter give no information of on any of these other variables. The oxygen content of the blood, मतलब ऑक्सीजन का कंटेंट ब्लड में कितना है उसका इंफॉर्मेशन ये नहीं देता। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द ब्लड मीन्स द पल्स ऑक्सीमीटर विच विल बी नॉट गिविंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच विल बी डिजॉल्व, कितना अमाउंट ऑक्सीजन ब्लड में डिजॉल्व है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन नहीं देता। देन द रेस्पिरेटरी रेट और टाइडल वॉल्यूम इन वेंटिलेशन, वो भी हमको इससे पता नहीं चल सकता है। और we will not seeing the cardiac output or the blood pressure with the help of this pulse oximeter, मतलब ये सारी चीज़ों की ये जानकारी या इंफॉर्मेशन नहीं देता है हमको। The blood flow is normally show as an wave form using a bar or graph. It can provide useful information regarding the heart condition। ठीक है, मतलब ये किस में आपको शो करेगा, it will be showing the pulse oximeter which will be connected with the मॉनिटर, जो मॉनिटर के साथ में जो कनेक्टेड रहते हैं उसमें ये वेव फॉर्म जो है वो शो करता है।
Then next is the procedure, how we have to perform the procedure of this pulse oximeter. So firstly we have to explain the procedure to the patient, means हमको patient को बताना है कि अभी हम आपके साथ क्या procedure करने वाले हैं, अभी हम आपका ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कितना है वो हम देखने वाले हैं. सो जो एक्सप्लेनेशन होता है वो क्या करता है, द एक्सप्लेनेशन विच विल बी रिलीव्स द एंजाइटी एंड इट विल बी हेल्पफुल टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट एंड द पेशेंट्स रिलेटिव. देन आफ्टर दैट वी हैव टू परफॉर्म द हैंड हाइजीन, हमको क्या करना है, हैंड वॉश करना है, सो दैट वी विल बी प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग फैलने से प्रिवेंट कर सकते हैं. देन सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट साइट फॉर एप्लीकेशन ऑफ द सेंसर, मतलब वो जो सेंसर है पल्स ऑक्सीमीटर लगाने के लिए पहले हमको देखना है व्हाट इज द वेयर इज द एग्जैक्ट साइट. अगर फर्स्टली वी हैव टू चेक द पेशेंट एज, पेशेंट का जो एज है या पेशेंट छोटा बच्चा है या फिर अडल्ट है या ओल्डर अडल्ट है, तो वो हमको देखना है. सो यूज द पेशेंट्स इंडेक्स, हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वी विल यूज द पल्स ऑक्सीमीटर इन द पेशेंट्स इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर में. क्यों? क्योंकि इनएडिक्वेट सर्कुलेशन कैन इंटरफेयर विद सैचुरेटेड ऑक्सीजन रीडिंग. ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, अगर इनएडिक्वेट जहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन कहीं पे भी नहीं लगा सकते हैं, जहाँ पे जो आर्टीरियल वेन्यूल्स जो बेड होते हैं वो जहाँ पे होते हैं प्रॉपरली, हमको इन प्रॉपर कुछ एरियाज में मिलता है, उसी एरियाज में हम लोग क्या कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर को लगा सकते हैं. सो और ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि इनएडिक्वेट जो सर्कुलेशन है वो क्या में इंटरफेयर करता है, इट विल बी इंटरफेयर इन द सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन रीडिंग. Then check the proximal pulse and capillary refill of the pulse closer to the side. After checking use the patient index, मतलब हमने साइड देख लिया, देन आफ्टर चेकिंग द साइड चेक द प्रॉक्सिमल पल्स. हमको क्या करना है, प्रॉक्सिमल पल्स देखना है या फिर कैपिलरी रिफिल ऑफ द पल्स विच विल बी क्लोजर टू द, जो साइड में हम पल्स ऑक्सीमीटर यूज कर रहे हैं उसी साइड में हमको पल्स जो है वो चेक करना है. इफ सर्कुलेशन एट साइट इज इनएडिक्वेट द ईयरलोब और ब्रिज ऑफ द नोज में भी कंसिडर. अगर उस जगह पे हमको ऐसा लग रहा है दैट द सर्कुलेशन विच विल बी इनएडिक्वेट, ठीक है, अगर इंडेक्स या मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर में हमको प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है, सो इन दैट टाइम वी विल यूज द ईयरलोब या फिर ब्रिज ऑफ द नोज में हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर को लगा सकते हैं. क्यों इस एरियाज में अपन यूज कर सकते हैं, बिकॉज दीज साइट्स आर हाईली वेस्कुलर अल्टरनेटिव्स, क्योंकि इन जगहों में बहुत सारे जो वेसल्स या वेस्कुलर्स के क्या रहते हैं, ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं, जिससे हमको करेक्ट रीडिंग मिलने में हेल्प होता है. यूज अ टो ओनली इफ लोअर एक्सट्रीमिटी सर्कुलेशन इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. अब हम लोग व्हेन वी विल यूज द लोअर मीन्स व्हेन वी विल यूज द टो, हम पैर में कब यूज कर सकते हैं, व्हेन वी विल कंफर्म दैट द लोअर एक्सट्रीमिटी सर्कुलेशन विच विल बी प्रॉपरली, अगर लोअर एक्सट्रीमिटी है वो क्या हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, तब अपन क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट यूज द प्रॉपर इक्विपमेंट. हाउ वी विल यूज द प्रॉपर इक्विपमेंट, इफ वन फिंगर इज टू लार्ज फॉर द प्रॉप यूज ए स्मॉलर वन. हमको देखना है कि वो जो प्रॉप है उसमें उसके लिए अगर कोई फिंगर ज़्यादा बड़ा है, सो वी हैव टू यूज द स्मॉलर वन. A pediatric prop may be used for a small adult, मतलब it will be depend upon the patient. ये किस पर डिपेंड करता है, पेशेंट पर डिपेंड करता है. अगर छोटा बच्चा है उसमें हम लोग अगर बड़ा सा प्रॉप लगा दिए, सो इन दैट कंडीशन वी विल नॉट गेटिंग द करेक्ट रीडिंग ऑफ द पेशेंट का हमको करेक्ट रीडिंग उससे नहीं मिलेगा. सो यूज प्रॉप अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट्स एज एंड साइज. ठीक है, कभी भी whenever we will perform this procedure, in that time we have to use the prop according to the patient's age and size. So prop come in adult, pediatric and infant size. ये जो props होते हैं वो सबके लिए अलग अलग होते हैं, infant के अलग होते हैं, pediatric के अलग होते हैं, adult के अलग होते हैं. So check if patient is allergic to adhesive. इसमें adhesive क्यों बोल रहा है, adhesive tape भी अपन यूज कर सकते हैं. It will be used in the
the pulse oximeter, which will be connected with the monitor, and it will be used to the patient who is small, या छोटे बच्चे होते हैं उनमें अपन यूज करते हैं. So हमको देखना है कि that the patient which will be allergic to adhesive or not, a non adhesive finger clip or रिफ्लेक्टेंस सेंसर इज अवेलेबल. ठीक है, देखो नॉन एडिसिव भी बोल रहा है. जो नॉन एडिसिव है और जो फिंगर क्लिप वाला जो है वो कैसा रहता है, पोर्टेबल वाला होता है. पोर्टेबल मतलब हम उसको इधर से उधर ले जा सकते हैं और उसमें मॉनिटर जो है वो अटैच नहीं होता है. सो अ रिएक्शन में अगर इफ पेशेंट इज एलर्जिक टू एडिसिव सब्सटेंसेस, देन प्रिपेयर द मॉनिटरिंग साइट. अब जो भी हमको, जो हमने सेलेक्ट किया है वो मॉनिटरिंग साइट को हमको प्रिपेयर करना है. सो cleanse the selected area and allow it to dry. We have to cleanse with the selected area with जो भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस है उससे हमको क्या करना है, क्लीन करना है. ठीक है, देन आफ्टर दैट why we have to clean skin oils, dirt or grime on site, polish and artificial nails can interfere with the passage of the light waves. ठीक है, कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे होगी तो ये क्या करेगा, जो लाइट वेव हमारे बॉडी में या हमारे पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन को देखने के लिए जो हमारे बॉडी के अंदर जाना है उस लाइट वेव को क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है. Then next is be remove nail polish and artificial nail. अगर artificial nail है या फिर nail polish है तो उसको हमको क्या करना है, remove करना है. Then apply the prop securely to the skin. Make sure that light emitting sensor and the light receiving sensor are aligned opposite to each other. Not necessary to check if placed on the forehead or bridge of the nose. Apply the prop means we have to check the prop which will be securely to the skin में secure है कि नहीं. और जो light emitting जो sensor है और light रिसीविंग, देखो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है जो नर्स है उसने क्या किया है, उस प्रॉप को या पल्स ऑक्सीमीटर को प्रेस किया हुआ है तो वो क्या होता है, ऊपर से लाइट जो है वो क्या है, अंदर जाती है. तो जो लाइट एमिटिंग सेंसर और लाइट रिसीविंग सेंसर जो है वो दोनों ही प्रॉपर अलाइनमेंट में होना चाहिए, वरना रीडिंग आपकी करेक्ट नहीं आएगी. ठीक है, then after that connect the sensor probe to the pulse oximeter and check operation of the equipment like presence of audible beep and fluctuation of bar of light or wave form of the monitor of the oximeter. जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया प्रॉप को तो हमको क्या देखना है, वी हैव टू चेक दैट द इक्विपमेंट. ठीक है, कुछ ऑडिबल बीप बीप ऐसा आ रहा है क्या, या कुछ लाइट में हमको फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहा है क्या, वो हमको देखना है. क्यों देखना है, ऑडिबल बीप रिप्रेजेंट द आर्टीरियल पल्स एंड फ्लक्चुएटिंग वेव फॉर्म इंडिकेट्स strength of the pulse. A weak signal will produce an inaccurate recording of the saturated oxygen. ऑक्सीजन सैचुरेशन का अगर वीक सिग्नल दे रहा है तो वीक सिग्नल क्या है, इनएक्यूरेट रिगार्डिंग इनएक्यूरेट रीडिंग, मतलब उसका प्रॉपर रीडिंग नहीं आया है. वो क्यों होगा, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली फिट नहीं हुआ है उसके कारण से ये हो सकता है. सेट द अलार्म ऑन द पल्स ऑक्सीमीटर. ये सेट करने का ज़रूरत किस में पड़ता है, व्हेन द पल्स ऑक्सीमीटर विच विल बी अटैच विद द मॉनिटर. अगर वो मॉनिटर के साथ में अटैच है तब हमको अलार्म सेट करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज वो अपने आप क्या करता है, अलार्म देता है. चेक मैन्युफैक्चर अलार्म लिमिट फॉर हाई एंड लो पल्स रेट सेटिंग. ठीक है, then after that check oxygen saturation at a regular interval as ordered by physician and necessitate by alarm monitor patient hemoglobin level. ठीक है, हमको क्या करना है, we have to check the oxygen saturation at regular interval. मतलब physician ने जितना बोला है like 2 hours interval or 4 hours interval, so according to the physician order we have to monitor the patient's oxygen saturation एंड मॉनिटर द पेशेंट हीमोग्लोबिन लेवल. और हमको साथ ही साथ पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो देखते रहना है. सो द हीमोग्लोबिन लेवल इट शुड बी मॉनिटर्ड बाय द कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट. ब्लड टेस्ट के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, क्यों देखना है, बिकॉज लो हीमोग्लोबिन लेवल में भी
satisfactory, saturated yet not be adequate to meet a patient's oxygen need. अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है वो भी inadequate हो सकता है, which will be not adequate to meet a patient's oxygen need. जितना पेशेंट का ज़रूरत है उतना पेशेंट को नहीं मिल रहा होगा. Then remove sensor on a regular basis and check for the skin irritation और साइन ऑफ प्रेशर. ठीक है, मतलब ये किसके लिए है, जिनको कंटिन्यू मतलब वो प्रॉब लगा हुआ है. ठीक है, अगर मॉनिटर के साथ में कनेक्ट वाला है और कंटिन्यू प्रॉब लगा हुआ है तो तब हमको क्या करना है, वी हैव टू रिमूव द सेंसर और ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड चेक फॉर स्किन इरिटेशन और साइन ऑफ प्रेशर. ठीक है, ये हमको देखते रहना है क्योंकि प्रोलॉन्ग प्रेशर में लीड टू टिश्यू नेक्रोसिस. अगर बहुत समय से लगा हुआ है और प्रेशर उसमें पड़ रहा है तो क्या हो सकता है, टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है. एंड बिकॉज ऑफ एडिसिव इट विल बी कॉज द स्किन इरिटेशन. देन अगर पोर्टेबल है, उसमें कोई मॉनिटर नहीं है, तो हम जब अपन देख लेते हैं कितना आया है उसका रीडिंग अपन ले लेते हैं. देन आफ्टर दैट वी विल रिमूव द पल्स ऑक्सीमीटर. देन इवैल्यूएट द माल फंक्शन और प्रॉब्लम विथ इक्विपमेंट. हमको देखना है कि ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, तो हो सकता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए. सो वी हैव टू इवैल्यूएट एनी माल फंक्शनिंग और एनी प्रॉब्लम विद द equipment for absent or weak signal, or check the patient vital sign and condition. If satisfactory, check connections and circulation to site. Then next is क्यों करना है, hypertension makes an accurate recording difficult. So restrain and BP cuff may compromise the circulation to side and cause venous blood to pulsate. मतलब हाइपोटेंशन अगर हुआ है तो एक्यूरेट रीडिंग आना डिफिकल्ट होता है क्योंकि क्या होता है, बीपी कफ वगैरह के कारण से इट विल बी क्रिएटिंग द कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन. तो अगर इफ द सर्कुलेशन विच विल बी कॉम्प्रोमाइज, सो इन दैट टाइम ऑल्सो we will not getting the proper recording of the oxygen saturation. Then if reading is inaccurate, check prescribed medication and history of circulatory disorder. अगर हमको रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रहा है तो हमको देखना है दैट द पर्सन इज हैविंग एनी सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, मतलब ब्लड के सर्कुलेशन से रिलेटेड या हार्ट डिसऑर्डर. इफ द पर्सन इज हैविंग एनी डिजीज और एनी प्रॉब्लम, ट्राई डिवाइस ऑन अ हेल्दी पर्सन टू सी इफ प्रॉब्लम इज इक्विपमेंट रिलेटेड और पेशेंट रिलेटेड. ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, वी हैव टू यूज दैट इंस्ट्रूमेंट in any other healthy person hand. Sorry. So in that way we will checking the equipment. वो equipment में खराबी है या patient में कुछ problem है, उसको find out करने के लिए हमको क्या करना है, we have to check the equipment in the healthy person. Then if bright light or sunlight or fluorescent light is suspected of causing equipment malfunctioning, cover prop with a dry wash cloth. और अगर कोई भी ब्राइट लाइट हो गया या सनलाइट में हमको नहीं रखना है, इज सस्पेक्टेड ऑफ कॉजिंग, ये इसके कारण से क्या हो सकता है, द माल फंक्शनिंग ऑफ द इक्विपमेंट. जो इक्विपमेंट है उसमें खराबी आने के चांसेस है. सो वी हैव टू कवर दिस equipment with a dry wash cloth. So bright light can interfere with operation of light sensor. Bright light जब इस मशीन पे या इस डिवाइस पे पड़ती है तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस ब्राइट लाइट विच विल बी इंटरफेयर विथ ऑपरेशन ऑफ द लाइट सेंसर एंड कॉज रिपोर्ट अनरिलायबल, जिसके कारण से जो रिपोर्ट होता है वो भी अनरिलायबल होता है. देन रिकॉर्ड द एप्लीकेशन ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, इट्स टाइप एंड साइज एंड ऑल नर्सिंग असेसमेंट. हमको क्या करना है, वी हैव टू रिकॉर्ड द एप्लीकेशन ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर. जो भी पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन सैचुरेशन और हार्ट बीट आई है उसको हमको रिकॉर्ड करना है. एंड वी हैव टू चेक विच टाइप, कौन सा टाइप का पल्स ऑक्सीमीटर हमने यूज़ किया है, कौन सा साइट हमने यूज़ किया है, और ऑल नर्सिंग असेसमेंट हमको करना है. वाई? बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड ऑनगोइंग असेसमेंट रिकॉर्ड.
Then what are the nursing responsibility? In every procedure you will see that nursing responsibility is there. हर procedure में एक nursing responsibility होती है. So in this pulse oximetry, the nursing responsibility is provide the patient with a simple explanation of pulse oximetry and its values. ठीक है, हमको क्या करना है? We have to give the information regarding the pulse oximetry in a simple way. एक हमको simply हमको बताना है कि pulse oximeter का क्या use है, why we will using this pulse oximeter in the patient's finger, and what are the uses. So select appropriate sensor prop for patient's age, weight, condition, duration of pulse oximetry monitoring, as well as the use of BP cuff, arterial catheter and or peripheral IV line. तो हमको क्या करना है? We have to select the appropriate sensor prop. हमको appropriate sensor prop जो है वो select करना है for patient age, according to patient age, according to patient weight, according to patient condition, according to duration. कितने कितने duration में हमको pulse oximeter से oxygen saturation देखना है, as well as the use of कौन सा BP कफ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आर्टीरियल कैथेटर यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें, तो वो सारी चीज़ों को देखना है. It will be comes under the nursing responsibility. Then remove any nail polish from any digit which will have a sensor applied as it interfere with light transmission. ठीक है, हमको if the patient इज हैविंग एनी नेल पॉलिश, अगर नेल पॉलिश है तो हमको क्या करना है? रिमूव करना है. क्यों? क्योंकि ये हमने पहले ही प्रोसीजर में देखा, इफ एनी नेल पॉलिश और एनी लाइट विच विल बी प्रेजेंट और एनी ऑयल और एनी अदर थिंग विच विल बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया, सो इट विल बी इंटरफेयर विद द वेव लाइट. वेव लाइट में क्या करता है? इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा एंड द मीन्स the recording which will be incorrect. Then if it show wrong reading, check patient's BP. अगर wrong reading आ रहा है, so we have to check the blood pressure of the patient or vital sign first. ठीक है, मतलब temperature, pulse, respiration, blood pressure, ये सारा चीज़ हमको देखना है. If they are acceptable for patient, then check for the following. अगर मतलब ये सारी चीज़ें ठीक है, तब हमको देखना है बैड कनेक्शन ठीक से नहीं लगा है क्या, वो प्रॉप ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ है क्या, या फिर इनएडिक्वेट और इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो टू साइड, वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है क्या, इनएडिक्वेट है, और एनी इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो विच विल बी अकर इन द पर्टिकुलर साइड. देन इट विल बी ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट माल फंक्शनिंग. अगर पल्स ऑक्सीमीटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसके कारण से भी क्या हो सकता है? द रीडिंग विच विल बी इनकरेक्ट. देन व्हाट इज आफ्टर यूज. ठीक है, यूज करने के बाद हमको क्या करना है? सो वी हैव टू रिमूव द सेंसर फ्रॉम मॉनिटरिंग साइड. हमको सेंसर को रिमूव करना है फ्रॉम द मॉनिटरिंग साइड. वॉश साइड ऑफ विद द सोप एंड वाटर. वी हैव टू वॉश दैट पर्टिकुलर एरिया. That do not use alcohol. We will not use any type of alcohol. Then after that we have to do the documentation. So in documentation, document pulse oximeter reading, मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन हमको देखना है, लिखना है. देन सेंसर प्लेसमेंट एंड अलार्म सेटिंग, कंटिन्यूस मोड मतलब अलार्म सेटिंग के बारे में लिखना है. Again I am telling, it will be for the pulse oximeter which will be connected with the monitor. ठीक है, जिसमें मॉनिटर नहीं है उसमें हमको अलार्म सेटिंग के बारे में नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें हम लोग जस्ट लगाएंगे और देखेंगे. लेकिन अलार्म सेटिंग हम लोग कब लिखेंगे? जैसे हमने अकॉर्डिंग टू फिजिशियंस ऑर्डर, इफ द physician which will be recommended that every 2 hour we have to check the patient's reading, तब हम लोग अलार्म सेटिंग के बारे में लिखते हैं ऑन पेशेंट केयर रिकॉर्ड और फ्लो शीट. ठीक है, पेशेंट के केयर रिकॉर्ड में या फ्लो शीट में हमको ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना है. और अगर सिर्फ हम लोग जो पोर्टेबल यूज करते हैं, सो इन दैट टाइम वी विल राइट डाउन द पेशेंट ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पेशेंट दिस हार्ट बीट. So these all things we have to document in the patient's case sheet. So these all are about the pulse oximeter. So pulse oximeter, it is a non-invasive device, and in nowadays it is very helpful device to check the oxygen saturation of the patient because of this pandemic time, or this because of this COVID. In COVID, the person's main symptom, that is hypoxia. The person is having the problem of hypoxia or breathing difficulty. So how we will be find out the
patient's oxygen saturation with the help of this pulse oximetry. So the pulse oximetry, this procedure is very important. Not only the procedure is very simple, but we have to know that how it will be functioning, कैसे ये function करता है, what are the principles and what are the nursing responsibility when we will checking the pulse oximetry in the patient. So these all about my patient. If anyone having any doubt, so contact me. Thank you.